When it comes to conduction, first thing we have three modes of transfer of energy, and which is conduction, convection, and radiation. Conduction occurs in solid, convection occurs in fluids, particularly liquids, and radiation vacuum. This is the only thing which is medium independent. It travels in the form of electromagnetic radiation, which is medium independent for us. Okay. When it comes to conduction, the following points we need to keep in our mind. कि conduction, two types of materials पे split up होता है. We have two types of materials, conductors, which are good thermal conductors due to mobile electrons, and insulators क्या होते हैं? Which do not have mobile electrons. What happens in conduction is that energy is transferred from is transferred particles to particles through vibration. If I have these balls put closer together, when I'll give heat to this one, it will start vibrating and it will exchange its energy to neighboring one and it will exchange its energy to the neighboring one and this will go on. So particles to particles without movement of the particle from its position. When energy is transferred, particles to particles through vibration without any motion of the particle itself, that is known as conduction हमारे पास. ठीक है. इसके दो एक्सपेरिमेंट्स नॉर्मली डिस्कस होते हैं. एक ही एक्सपेरिमेंट डिस्कस होता है कि दे टेक इधर सिंगल रॉड बनाया हुआ, हाँ, जस्ट दिस वन. So we take 3 to 4 types of rods, each of equal diameters and length, but they are made up of different materials. We attach wax to the other ends of it and attach paper clips to it, and we start heating it. The one which will lose the paper clip first is the best conductor, and which lose the paperclip last is the worst conductor of heat. So if there comes an experiment which if there comes a question with where they're demanding for us to explain and justify how we can be sure that this is a better conductor, तो हम इस experiment को यहाँ पे discuss करेंगे. And जो उन्होंने ये experiment discuss किया हुआ है, ये भी यही है कि which will lose the paper clip first, greater number of paper clips जो भी lose करेगा. अगर हम different rods यहाँ पे attach करते हैं, it would show के और faster show उसको release करेगा. It means it's a good conductor of heat. फिर ये एक्सपेरिमेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट. इसके रिस्पेक्ट से हम डिस्कस करते हैं, जस्टिफाई करते हैं व्हाई कंडक्शन इज नॉट द राइट वे of transferring energy to the material. Because उसका first reason, liquids के particles, they can move freely within the liquid. So for to transfer energy from one particle to the other one, it will take time. So we introduce the mode of transfer of energy, which is convection.
अब इसमें होता क्या है, इस एक्सपेरिमेंट से क्या हुआ, दे स्टार्टेड, दे हैव एन आइस क्यूब, दे हैव इट्स, ये जो वायर गेज है इट्स प्लेस्ड ओनली टू कीप इट इन प्लेस। यहाँ से हम उसको हीट अप करना स्टार्ट करते हैं। व्हेन व्हेन यू स्टार्टेड हीटिंग हियर, सॉरी, so water start boiling here and the ice has not melted yet. This shows that the transfer of energy is not uniform across the liquid due to conduction. So अगर हम consider करते हैं कि particles to particles energy transfer हो रही है, तो water should not be boiling here, बल्कि सबसे पहले ice को melt होना चाहिए था and the whole test tube should have been boiling all together. But we saw the boiling only at the tip where we're giving the heat. This shows that conduction, which means particle itself move from its particle exchange its energy to the neighboring one, is not the right way of transferring energy to the material. Okay? Do we understand? If they ask us to compare conduction versus convection, why conduction is not the right mode of transfer of energy for fluids, तो हम इस एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे। फिर कन्वेक्शन होता क्या है इटसेल्फ? कन्वेक्शन क्या होता है अयान? In which particle itself move Heat transfer takes within the fluid in the from its tank. position and exchange its energy. इसको जस्टिफाई करने के लिए वो बीकर में वाटर लेते हैं और KMnO4 के क्रिस्टल्स वहां पे प्लेस करते हैं। ठीक है, अब उसमें वो क्या देखेंगे, वेयर इज दैट डायग्राम, हाँ ये वाली। So they took a beaker, placed water into it, and उसकी bottom पे उन्होंने potassium permanganate के crystals रख दिए, which is purple in color, and we'll see stream of colors going upward, which shows कि particle itself move कर रहा है and अपनी उसको, अब obvious यहाँ पे energy तो नहीं है हमारे पास, but this shows कि liquids में particles क्या करते हैं, itself move करते हैं from their position और अपनी energy को क्या करते हैं, exchange करते हैं। इसको justify करने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट डिस्कस होता है, विच इज दिस वन, जिसको हमने कन्वेक्शन करंट की टर्म्स में प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कन्वेक्शन करंट क्या आता था? मूवमेंट ऑफ हॉट एंड कोल्ड एयर particles. Hot being less dense moves upward, and cold being more dense moves downward. तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने ये दिखाया है कि दिस एक्चुअली हैपेंस इन इट। उन्होंने दे पुट अ कैंडल below one chimney and they put burning paper on the other one, and just to have a visible smoke. So we would see that the smoke is coming out of this chimney. And why is that? Because whatever the air was present here, it got heated because of this candle and it went out. Now taking its place, cold air would come in and it will become heated and will get out of this chimney. So this cold and hot air movement justifies the convection current जो हम लोगों ने study किया था. Do we understand what convection current is? It is the movement of hot and cold air particles. Hot air particle being less dense would move upwards and cold air particles would take their place. इनकी बहुत सारी application होती हैं. I'll get back to that application, but first let's go upwards and see कि why conductors जो हैं they are good in conduction heat. This is a glass rod. We do not have any mobile electrons into it. So the heat would take time to move to the other end of it. On the contrary, जब हम metal rod की बात करते हैं, metal rod भी यहीं कहीं पे था, I saw that. हाँ, मेटल रॉड के अंदर क्या होता है, वी हैव दीज फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। वो क्या करेंगे, द मूवमेंट एनर्जी इज बीइंग एक्सचेंज पार्टिकल टू पार्टिकल, दे वुड मूव देयर पोजीशन एंड वुड एक्सचेंज देयर एनर्जी टू द अदर एंड ऑफ इट। दैट्स व्हाई जो मेटल्स होते हैं दे आर बेटर कंडक्टर ऑफ हीट, बिकॉज उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, एनर्जी फास्ट एक्सचेंज होती है, ऑन कंट्रेरी टू द इंसुलेटर्स बिकॉज दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वो दोनों में कंडक्शन का फिनोमेना ही रहा है, पार्टिकल्स टू पार्टिकल्स ही एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, but we have a bonus point of these free electrons.
कौन जिसकी वजह से इनकी मूवमेंट होती है टू दी अदर एंड ऑफ इट. तो वी शुड कीप दीज पॉइंट्स इन आवर माइंड. ये टेबल आपको याद करने की जरूरत नहीं है. बस नॉर्मली हमारे पास बेस्ट कंडक्टर टू वर्स्ट कंडक्टर हमारे पास आ रहा है, एंड बेस्ट इंसुलेटर टू वर्स्ट इंसुलेटर हमारे पास आ रहा है. तो यहाँ पे अगर आप दो तीन, इट्स वेरी बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, इतना कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं होता है यहाँ पे कि वो. ये उन्होंने डिस्कस किया कि विच, इस एक्सपेरिमेंट में वो ये डिस्कस किया विच वन इज अ बेटर इंसुलेटर. तो हमने वी टुक थ्री कंटेनर्स with boiling water into it. हमने सब में 100 डिग्री सी का वाटर प्लेस किया, एंड वी इक्वल टाइम दिया सबको कूल डाउन होने के लिए. एंड हमने ऑब्जर्व किया कौन सा सबसे जल्दी कूल डाउन होगा. तो जो सबसे जल्दी फास्ट कूल डाउन होगा, इट मींस it is the worst insulator, and which will maintain its heat for a longer period of time, which will maintain its temperature for a longer period of time, would be the best insulator. तो हम इन सबके टेम्परेचर्स को काउंट करेंगे, एंड वी वुड सी कि जिसने सबसे लेस टेम्परेचर ड्रॉप दिया होगा, इट वुड एक्ट एज अ गुड insulator. Are we clear? Are we understanding these experiments? Yes. तो कन्वेक्शन के अंदर फर्दर ऑन हमने एक और पॉइंट को डिस्कस करना होता है, एंड दैट इज के व्हाई डू वी पुट हीटर्स, मतलब डाउन ऑन द ग्राउंड क्यों होते हैं, एंड व्हाई डू वी पुट रूम कंडीशनर्स, रूम एसीज ऑन टॉप ऑफ द रूम. तो उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? व्हाई डू वी हैव एयर कंडीशनर्स ऑन ऑन टॉप एंड हीटर्स एट द बॉटम? Because the colder particles are heavier and they fall down. Yes, so they are at the bottom of it. So heater उनको heat up करेगा, and eventually the जो room के अंदर present air particles होंगे वो ऐसे ऐसे सारे क्या हो जाएंगे, heat up हो जाएंगे and become less dense. So room जो है हमारा heat हो जाएगा. On the contrary, ACs को ऊपर इसलिए लगाया जाता है, we want cold air in the room. तो ACs क्या करता है, top के ऊपर जो hot air particles present होते हैं उसको suck in कर लेता है, and remaining air particles को क्या कर देता है, कूल डाउन कर देता है, और इस तरीके से टेम्परेचर हमारे पास क्या हो जाता है, कांस्टेंट. इसी वजह से वेयर देयर इज एसी ऑन या हीटर्स ऑन होते हैं, वो डू नॉट कीप द रूम ओपन, बिकॉज अगर हम रूम ओपन करेंगे तो एयर की मूवमेंट हो जाएगी. तो मूवमेंट किस किस्म की होगी? हीटेड रूम के केस में क्या होगा? Now the cold air particles from outside would enter the room and replaces all the hot particles. And same goes for the cold room, कि वहां पे भी वो enter होंगे and it would replace it, और इस तरीके से वो हो जाएगा. So conduction ये उन्होंने शो किया हुआ है. हॉट एयर पार्ट ये आई गेस उन्होंने वार्म ऑब्जेक्ट से बोला हुआ है कि वो अपवर्ड मूव करेंगे. वो जब अपवर्ड मूव करेंगे तो कोल्ड एयर पार्टिकल्स को डाउनवर्ड पुश करेंगे एंड वो हीट अप होंगे, एंड दिस इवेंचुअली द रूम विल गेट हीटेड कंप्लीटली. तो कन्वेक्शन के अंदर, कंडक्शन के अंदर ये बेसिक बेसिक पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि हाउ दीज पॉइंट्स वर्क. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स हम लोग पहले ही पढ़ चुके हुए हैं, वो तमाम पैरामीटर्स आपको याद हैं प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर, तो वो हमने इसके अंदर अप्लाई करने हैं इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन आवर आंसर इन अ बेटर वे. रेडिएशन हम डिस्कस कर चुके हैं. रेडिएशन इज द ओनली मोड ऑफ एनर्जी विच इज नॉट dependent on the medium, whereas conduction and convection both depends on the medium, solid and liquids के ऊपर depend करते हैं. So जो रेडिएशन है, it travels in the form of infrared radiations हमारे पास. ठीक है, we have seen these kind of diagrams so many times. It means कि हमारी बॉडी क्या करती है, हीट emit करती है all the time, और उस हीट को हम लोग क्या करते हैं, मतलब it could be temperature sensing circuits या thermal cameras के through we could observe that. अब हमारी जितना ज्यादा बॉडी का टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा infrared radiations of shorter wavelengths emit होंगी. ठीक है, जितना कोल्डर बॉडी होगी उतनी, और ये कलर जो कलर चेंजेस शो कर रहे हैं ना, कलर चेंजेस का मतलब यही होता है कि ब्लू अगर है तो इट मींस सराउंडिंग इज कूल, एंड रेड इट मींस, रेड जहां पे आ रहा होता है इट मींस उसका टेम्परेचर क्या है हमारे पास, ज्यादा है. तो जो कलर डिफरेंसेस होते हैं दैट ये पैरामीटर भी आपको शो कर रहा है यहाँ पे कि हाउ द कलर डिफरेंसेस बेसिकली मींस. तो हम ये कह सकते हैं कि इंफ्रारेड रेडिएशंस जो होती हैं वो हीट वेव्स होती हैं. Greater the amount of the body temperature, greater will be the infrared radiations of shorter wavelengths of more energy. And if the temperature of the body is less,
the infrared radiations of longer wavelengths would be emitted from the body. Okay? इसके अंदर आपने एक चीज याद रखनी है, गुड एब्जॉर्बर, गुड एमिटर एंड गुड रिफ्लेक्टर, दीज थ्री टर्म्स. सो कौन सी तीन टर्म्स याद रखनी है? एब्जॉर्बर्स, एमिटर्स एंड रिफ्लेक्टर्स. सो जो मैट कलर्स होते हैं दे आर गुड एब्जॉर्बर्स एंड एमिटर. जो शाइनी होते हैं दे आर गुड रिफ्लेक्टर्स. एंड सेकेंडली जो वाइट होता है and silver होता है, it is a good reflector and bad absorber and emitter. And on the contrary जो black color होता है, so it would be a good absorber and emitter. ये पॉइंट्स आपने जहन में रखने हैं. इस एक्सपेरिमेंट को जस्टिफाई करने के लिए हमारे पास एक लेस्लीज क्यूब होती है, या हम इस एक्सपेरिमेंट का भी हेल्प आउट ले सकते हैं कि we would put a cardboard in between the two. We would put the warm water in both the beakers and we would see the temperature difference in both. We would see कि सबसे faster temperature drop किस में आएगा? Black वाले में, because it's a, why is that? Because it's a good absorber and emitter. And least temperature drop किस में आएगा? Silver shiny surface के अंदर, because they are better reflectors of it. Do we understand these terminologies? Absorbers and emitters को कैसे डिस्कस करना है? Yes. सिमिलरली ये भी एक एक्सपेरिमेंट है. तो किसमें टेम्परेचर ड्रॉप, टेम्परेचर इंक्रीज सबसे फास्टर होगा? इसमें, ब्लैक में या सिल्वर में? Black. ब्लैक में. क्यों? बिकॉज इट्स अ गुड एब्जॉर्बर. सिल्वर का टेम्परेचर इंक्रीज स्लो होगा हमारे पास. ये हमने इक्वल डिस्टेंस पे रखा हुआ, इक्वल अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं, सेम टाइप ऑफ थर्मोमीटर्स यूज कर रहे हैं, बीकर्स एग्जैक्टली सेम मटेरियल्स के हैं, बट वन इज कलर्ड मैट ब्लैक और एक को क्या सरफेस दे दिया हमने? सिल्वर सरफेस दे दिया हुआ. On your book, you must memorize all these diagrams. कि वैक्यूम फ्लास्क के अंदर कौन सी चीज किससे स्टॉप हो रही होती है. लेट्स डू दैट वन बाय वन. सबसे पहले उन्होंने डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे कर्टन्स को. ठीक है. थिक कर्टन्स एंड क्रोट एक्सक्लूडर्स क्या करते हैं? दे स्टॉप कन्वेक्शन करंट, सो प्रिवेंट्स थर्मल एनर्जी ट्रांसफर. जो हमारे पास इंसुलेशन होती हैं रूफ के अंदर, they prevents conduction of thermal energy through floors and ceilings. हमारे पास जो डबल ग्लेज्ड विंडोज होती हैं, they have vacuum in between, तो वो कंडक्शन एंड कन्वेक्शन दोनों को स्टॉप करते हैं. वैक्यूम की वजह से कंडक्शन कन्वेक्शन दोनों स्टॉप होती हैं हमारे पास. हमारे पास ये जो स्पेसेस इन बिटवीन होती हैं, उसकी वजह से क्या होगा? कैविटी इन द वॉल, इट रिड्यूसेस थर्मल एनर्जी बाय कंडक्शन. कॉज कंडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एक फुल ऑन सॉलिड सरफेस चाहिए होती है. सो दीस वुड रिड्यूस थर्मल एनर्जी लॉस, क्योंकि यहाँ पे एयर आ जाएगा और एयर कंडक्शन को नहीं पॉसिबल करता. एंड फॉर्म एंड रॉक अगेन क्या करेगा? इट फर्दर रिड्यूसेस थर्मल एनर्जी ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन, बिकॉज दे आर बैड इंसुलेटर्स, सॉरी गुड इंसुलेटर्स, एज वेल एज वो एयर यानी फ्लूइड को नहीं पास आउट होने देंगे, तो जो वो उसमें से नहीं आएगा तो हम उसमें नहीं कर पाएंगे. तो ये वाली एग्जांपल है, आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि स्टॉपर हमें किस चीज को स्टॉप कर रहा है? एवापोरेशन को भी स्टॉप करेगा और कंडक्शन को भी स्टॉप करेगा. जो सिल्वर सरफेस है वो रिफ्लेक्टिव है हमारे पास. मेटल सरफेस गुड कंडक्शन को शो करेगी. स्टॉपर किस लिए यूज किए? ताकि हम कंडक्शन को स्टॉप कर सकें. डबल ग्लेस विंडोज वैक्यूम किस लिए प्लेस करते हैं? ताकि कन्वेक्शन और कंडक्शन दोनों स्टॉप हो सके. एंड ये सारे पॉइंट्स उन्होंने यहाँ थ्योरी के अंदर दिए हुए हैं. इट वाज समवेयर, हाँ ये वाले वो सारे पॉइंट्स है. के glass is generally used because glass is a good insulator. Some flasks are made up of steel for added strength. Air is removed from the gap between the double walls, creating a vacuum. This vacuum reduces loss conduction and radiation both. Silver coating on the glass reduces losses by radiations by reflecting infrared, and stopper is made of plastic to prevent both convection and evaporation, और conduction भी उससे क्या होगी? Stop होगी हमारे पास. So this is a very important example. You should remember each and every part of it कि कौन किस चीज को stop कर रहा है, and this whole table also helps you
to write your points कि अगर ये वो आपको कोई material दे देते हैं, they discuss it and they ask you to discuss conduction, convection, radiations किस way में यहाँ पे stop होगी, so you have to answer all of these वो उसके ऊपर करते हुए। या हाउस के अंदर भी उसने जो है बेसिकली तमाम पैरामीटर्स को डिस्कस किया हुआ है कि जो ये नीचे टेबल है ये बेसिकली इस कॉन्टेक्स्ट में हुआ है कि इंसुलेशन से क्या स्टॉप हुआ, कैविटी से क्या स्टॉप हुआ, कारपेट से क्या हुआ, डबल ग्लेस विंडो से, ड्रॉट एक्सक्लूडर से और कर्टन से। तो बेसिकली उसने इस टेबल, इस हाउस के रिस्पेक्ट से इस टेबल के अंदर वो किया हुआ है कि हाउ वी कैन कंजर्व द एनर्जी, हमारा थर्मल वेस्टेज ना हो किसी भी पॉइंट के ऊपर। सो इनके अंदर आपने यही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मैंने बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही सारे आपको डिस्कस किए हैं। सो इफ देयर इज एनी क्वेश्चन स्टिल यू कैन जस्ट गो अहेड एंड आस्क मी। ये फिन्स के बारे में, फिन्स को ब्लैक क्यों शेड किया है हम लोगों ने, अहमद? क्या सर? ये फिन्स को ब्लैक कलर क्यों दिया है हम लोगों ने? क्योंकि वो Why हीट have we ज्यादा colored अब्जॉर्ब it कर black? सके, हाँ, बिकॉज they could हमने हीट absorb एब्जॉर्ब more करना heat. है, ब्लैक इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। हमने सिल्वर सरफेस क्यों यूज किया है? ताकि वो हीट को रिफ्लेक्ट कर सके टुवर्ड्स दैट दोस ब्लैक फिन्स। इनको हमने कॉपर का क्यों बनाया है? बिकॉज कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये दे आर मेड अप ऑफ कॉपर। कलर ब्लैक कर दिया तो कॉपर की वजह से पहली कंडक्शन अच्छी थी, ब्लैक कर दिया, दे आर इवन मोर बेटर एब्जॉर्बर्स। सिल्वर सरफेस क्यों दी है? ताकि वो सारी हीट इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करे और यहाँ से भी जो हीट एमिट हो वो वापस इनकी तरफ हीट को रिफ्लेक्ट करे, ताकि वो अच्छे तरीके से क्या कर सके, उनको एब्जॉर्ब कर सके। यहाँ पे उन्होंने सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया हुआ है। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर लार्जर होती है, इट टेक्स टाइम फॉर वाटर टू हीट अप एंड कूल डाउन, तो वाटर फ्लोज अराउंड द ब्लॉक टू एब्जॉर्ब थर्मल एनर्जी, वाटर इज गुड चॉइस, इट हेल्प्स अ वेरी हाई स्पेसिफिक, इट हैज अ वेरी लार्ज हाई स्पेसिफिक। सो अगर आप उसको हीट अप कर रहे हैं तो वो कूल डाउन भी क्या होगा, स्लोली होगा। कन्वेक्शन, as water is heated a convection current flows in the direction shown by the arrows। ये वाला इस पंप को बेसिकली डिस्कस कर रहा है वो। मैं इसको थोड़ा स्मॉलर कर देता हूँ। ओके, सो कंडक्शन, द रेडिएटर हैज मेटल फिन्स। मेटल का काम क्या है? कंडक्शन करना। So thermal conduction is conducted to all parts of the radiators and radiations. The fins have larger surface areas and are black to increase the rate of thermal radiation। इस तरीके से वो पंप जो है प्रॉपरली क्या करते हैं, काम करते हैं कूलिंग सिस्टम के अंदर। ओके, Okay. that is it for this section. Do you have any questions so far? No,